Hello student, welcome back in today's video lecture. So हम पहले से ही चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट कर चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि हमने मैनेजमेंट के मीनिंग को पढ़ा था, जिसमें ये बोला गया है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर अचीविंग goals and objective of the organization most effectively and efficiently. So in this particular meaning, you must have noticed that there are 5 functions of management, which we have already discussed in the last class, in the previous class. So first function is planning, then moving further to arrange the resources in organizing function, then we will try to hire, recruit or select the most efficient, most skillful labor or worker in the organization. Then there is a need of guiding them, motivating them, leading them, or providing supervision so that they could perform according to their potential. And finally, in controlling function, we try to compare the actual performance of the worker with the planned performance. If there is a difference or deviation, then the manager will try to find the reason of the deviation and try to correct them in the future. So overall, there are 5 functions and each function has its own significance, and these functions should be performed in a series. So now here we are going to discuss about the coordination. What is the coordination? Coordination is like a thread in a garland which bind each and every pearl, each and every flower in a garland. Suppose एक फूलों की माला बनाते हैं, तो फूलों की माला बनाने के लिए हमें अलग अलग फूल चाहिए होते हैं, इंडिविजुअल फूल होते हैं। उन सारे फ्लावर्स को एक साथ पिरो के माला बनाई जाती है, बट वो तभी एक साथ जुड़ पाएंगे जब एक धागा हमारे पास होगा। तो ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने अलग अलग प्लान, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं in order to achieve the common goals और objective of the organization. So then मैनेजमेंट को एक ऐसे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वो सारे डिपार्टमेंट, वो सारे फंक्शंस यूनिटी में आ जाएं, सिंक में आ जाएं, उनके एफर्ट्स इंटीग्रेट हो जाएं ताकि जो कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव किया जा सके। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करती है ताकि हर एक्टिविटीज़ का एक ही डायरेक्शन हो जो कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए होगा। एज यू कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर notes of coordination, the first point is an organization is divided into several departments. It means कि there are numerous department in organization. So here we will talk about the business organization. So in business organization, there could be the production department, which is merely devoted to producing goods and services. Sales department, who will look after the sales of the goods and services. Finance, who will look after the finance requirement of the business. Marketing will look after the advertisement, to look after the increasing the sales and all. Human resource department means will look after recruitment, selection of your employees. So it means in totality there are different departments in the organization, and each department has their own individual plan and policy. So there is a need to bind the effort of these individual departments so that the common goal or objectives can be achieved. So now there is a need of a thread in a garland, and in business that thread is called as coordination. It means जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है
उन एक्टिविटीज़ को या उनके एफर्ट्स को सिंक में लेके आना है, ताकि जो हमारा कॉमन गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा स्कूल है केंद्रीय विद्यालय कटिहार, उसका अपना भी एक गोल और ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे विद्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सीसीए डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, and teaching department. So these are various department, and each department has their own activities, different activities, and they're having their own plans and policy. But if these activities are not properly coordinated, then there will be chaos or confusion, and the common goal or objective of the organization cannot be achieved. So that is why the one thread in the guideline, which is basically known as coordination, will be required. So each department has their own plan and policy, and to utilize their resources, the coordination is very much required. For example, suppose you have 8 periods in your school in a day, and suppose there is no timetable, then there will be the lot of confusion. Means which teacher will come and teach? If suppose at one point of time 2 or 3 teachers come, then so it means the proper planning, the proper coordination is required in order to utilize each and every resources of the organization. And these department of the various department of the organization should cooperate and coordinate together, because there is a need of bringing unity in their action. So now we'll move further. So what is the coordination? Coordination is the force. Coordination is the force. What is this? Coordination is the force that bind all other function of management. It means it is just like a force that pushing you ahead. Why? Because you have to achieve the common goals and objective of the organization. So without coordination, no one can achieve the main objectives and goal of the organization. So in short term, we can say that coordination is nothing but like a thread in a gauntlet. And sometimes the students are very much confused that coordination is a separate function of management. No, management has only 5 functions, and which are those? Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. In order to synchronize the effort, the activities of those 5 functions, we need a force that bind together all the activities of those functions, which is called as coordination. So coordination is not a separate function, it is an essence of management, which is required in each and every department, which is required in each and every function of management. So now the next thing, which is very important, we will move further, why the coordination is required in all functions of management. So first of all, the first function is planning. Planning means thinking in advance what you have to do, when you have to do. It means it will bridge the gap where you are, where you want to reach. So in planning, you are going to make certain plans for future. You are looking into future. So in this case, the top management will formulate the master plan for the whole organization, and the master plan should be in a sync with the different plan and policies of different department. If there is no coordination between the master plan and the plans of individual department, then the company or organization cannot achieve the goals or objectively, effectively and efficiently. So suppose for example that you have planned to achieve the production of 20,000 unit in 10 years. So in this case, suppose this is your master plan. So now this master plan need to be implemented in different departments. So 20,000 unit sales you want to increase.
So now in this case you must how to coordinate with your production department as well. It means the production department will make their own plan. So 20,000 unit will be requiring to be produced in 10 years. So in this case, in each year the production department is going to produce 2,000 more unit. If this plan is not coordinated with the production department, then this will not be success to the organization. So there is a need कि प्लानिंग करते वक्त भी हमें अदर डिपार्टमेंट्स की प्लानिंग के साथ मास्टर प्लानिंग करना ज़रूरी है. इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये कहता है कि जब प्लान बना दिए जाते हैं, उन प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है और उनके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनको अरेंज करना होता है. तो सपोज़ क्या एक्टिविटी करनी है और उसके लिए किस तरह का रिसोर्सेज चाहिए. अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देन देयर वुड बी अ फेलियर. फॉर एग्जांपल सपोज़ कि भाई तुम्हारे स्कूल में हमें पढ़वाना है अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़. अब अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के लिए हमें बहुत सारे अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड बुक्स चाहिए होंगी. सपोज़ अब यहाँ पर तुम्हें अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ की पढ़ाई करनी है, बट तुम्हारे हाथ में बुक दे दी जाती है मैथमेटिक्स की. तो कैन यू एबल टू स्टडी अबाउट द बिज़नेस और अकाउंटेंसी? नो. सो दैट इज़ वाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी. मतलब हमें किस तरह का रिसोर्सेज चाहिए, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी मशीनरी किस तरह की चाहिए, हमें वो उन चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. फिर है स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत होती है. अब स्टाफिंग का मतलब होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्वालिफाइड, नॉलेजेबल और स्किल्ड वर्कर को रिक्रूट और सेलेक्ट करके लाना. तो अब कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग में क्यों ज़रूरी है. सपोज़ तुम्हें चाहिए एक जनरल मैनेजर. अब जनरल मैनेजर की क्वालिफ़िकेशन हाई होनी चाहिए अच्छी, बट नाउ फॉर जनरल मैनेजर इफ़ सपोज यू आर ओवरलुकिंग द क्वालिफिकेशन, then in this case you are not coordinating between what your job position required and what quality or what qualification or skill you possess. और इसको इजी तरीके से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ तुम्हें चाहिए बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी का टीचर. सपोज़ हमारा स्कूल है, उन्हें अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ का टीचर चाहिए. अब अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडी के टीचर की क्वालिफ़िकेशन और जॉब पोजीशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है कि भाई बिज़नेस स्टडी पढ़वाना है तो उसके पास बिज़नेस स्टडीज़ का क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके पास बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी का टीचिंग क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए जो होता है एमकॉम और बीएड. तो अगर उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो हमारा जो मेन पर्पज़ है ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का वो सक्सेस नहीं हो पाएगा. फिर डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जब वर्कर हायर और रिक्रूट और सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, अब उन्हें टाइम टू टाइम प्रॉपरली गाइड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है और मोटिवेट करना होता है ताकि उनकी पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवाया जा सके या जो उनकी फुल पोटेंशियल है उतना काम उनसे लिया जा सके. तो डायरेक्टिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कम्युनिकेट किया जाता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में. तो देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है मिडल को. क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने फार्मुलेट की है ओवरऑल पॉलिसी. अब वो ओवरऑल पॉलिसी नीचे तक उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, तो देयर इज़ अ नीड टू कम्युनिकेट विद द मिडल लेवल को कम्युनिकेट करना है लो लेवल, और लो लेवल फाइनली वर्कर के साथ कम्युनिकेट करेगा. तो टाइम टू टाइम उन सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. फिर लास्ट है कंट्रोलिंग कहता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लान बना दिए जाते तो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए. तो फाइनली जब काम होता है तो एक्चुअल जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसको कंपेयर करते हैं प्लान के साथ. तो अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है या वेग प्लानिंग है
अनरियलाइजेबल प्लानिंग है या अनरीजनेबल प्लानिंग है, हमने स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए जो अचीव ही नहीं हो सकते। तो इन दिस केस हमारी जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी उनमें बहुत ज़्यादा डेविएशन रहेगा। तो स्टैंडर्ड्स के बीच में और एक्चुअल एक्टिविटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे फंक्शंस में ज़रूरी होता है मैनेजमेंट के। इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन को कोई अलग फंक्शन नहीं कह सकते, कोऑर्डिनेशन को कहते हैं असेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप सभी को मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार और हम देख लेते हैं। ऊपर कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो सिंक्रनाइज करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट मीन्स क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में सिंक लेके आता है, यूनिटी लेके आता है, ताकि कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली अचीव किया जा सके। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट मीन्स कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो वर्कर होते हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर रह के एक ग्रुप में काम करते हैं। अब हर इंडिविजुअल जो होता है उसका अपना खुद का इंडिविजुअल नीड भी होता है, तो coordination integrates group effort. It integrates diverse business activity into purposeful group activity, ensuring that all people work in one direction to achieve organizational goal. It means बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपने अपने गोल्स होते हैं। तो अगर हम उन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो शायद हम एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे और फिर अपने जो मेन गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला है 10,000 यूनिट का। अब सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स करना है 10,000 यूनिट। अगर सेल्स डिपार्टमेंट बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑर्डर रिसीव कर लेगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कैसे? अब सपोज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि उस ऑर्डर को वो क्या एग्जीक्यूट कर पाए। सो देयर इज़ अ नीड कि सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए ताकि दोनों एक डायरेक्शन में आगे बढ़ के काम करें। सो इट इज़ क्लियर। देन सेकेंड फीचर इज़ कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स कि जितने भी एक्शन होते हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें एकता हो, एक यूनिटी रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ अलग हैं और एम्प्लॉयज़ अलग हैं, बट हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल और हर एक्टिविटी को डायरेक्ट किया गया है फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ये इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, इनके काम में यूनिटी लाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक फोर्स होता है जो सारे काम को, सारी एक्टिविटी, सारे इंडिविजुअल को बाइंड करता है। क्या करता है? बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो सेल्स मैनेजर है, वो क्या करता है? अपने सेल्स एजेंट्स और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको काम देता है। तो यहाँ पर सेल्स एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल लेवल पे रह के काम करेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो हमारे सेल्स एजेंट हैं उनके काम में यूनिटी कौन लेके आता है? सेल्स मैनेजर। और सेल्स मैनेजर फिर इंटीग्रेट करता है अपने एफर्ट्स को विद एनी अदर डिपार्टमेंट्स। देन third feature, which is very easy, coordination is a continuous process. It means coordination is a never ending process. It is required in each level of management. It is required in all departments of the organization. It starts from planning and goes till the controlling. That is why it is known as continuous process. You can easily see that it is
not a specific activity matter. It is required at all levels in all department till the organization continue in operation. It means ongoing process होता है कोऑर्डिनेशन बार बार करना होता है, क्योंकि एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है ताकि कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. Then coordination is all pervasive function. All pervasive means it is universal in nature. It synchronizes the activity of all levels and departments as they are interdependent to maintain organizational balance. It means क्या है कि coordination कोई ये नहीं है कि खाली प्लानिंग में ही उसकी ज़रूरत है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग में भी ज़रूरत है, उसकी स्टाफिंग में भी ज़रूरत है, उसकी डायरेक्टिंग में भी, उसकी कंट्रोलिंग में भी. उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो हर डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेजिव है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, यूनिवर्सल है. कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. इट मीन्स इट इज़ not the duty or responsibility of only the top management. Coordination must be established by top management with the middle management. Middle management will establish coordination with the lower management, and the lower management will establish coordination between the worker. That is why it is the responsibility of all manager to unify or to synchronize the effort of their individual employee so that the maximum benefit or outcome can be brought. Then coordination is a deliberate function. Coordination is never established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager. It means क्या है, coordination जो होता है वो अपने आप establish नहीं होता, उसे establish किया जाता है. देखो यहाँ पर दो टर्म हैं, cooperation and coordination. Cooperation voluntary effort होता है, but जो coordination होता है उसको हम establish करते हैं, और इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनमें यूनिटी लाई जा सके. तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है. तो आई होप कि सभी फीचर्स आपको समझ में आई होंगी. तो पहली फीचर थी कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेजिव, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, coordination is a deliberate function. Then the last topic in coordination is importance of coordination. It means why the coordination is required in an organization. So there are basically 3 points given in the syllabus as well. First one is growth in size. What does it means? When the company or organization grow in size, it means when the company increase the number of departments, increase the number of products they produce, increase the number of branches they have. So in this case the company or organization is growing. So when the company will grow, more number of employees will be added to the organization, more activities will be added into the organization. So then there will be lot of difficulty or confusion to properly utilize all those activities. So in this case the coordination will be very much required, because there is a need to integrate the effort of each and every individual and department of the organization. So जब एक कंपनी ग्रो करती है साइज में, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होता है, और एफर्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. सेकेंड पॉइंट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल मीन्स फंक्शन मतलब क्या काम किया जा रहा है. डिफरेंशिएशन मीन्स जो काम है हमारे वो कितने अलग अलग हैं. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत अलग अलग होंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे, और जब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने होंगे तो हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो प्रोडक्शन एक फंक्शन है तो बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल एक फंक्शन है तो बना दिया सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस एक एक्टिविटी है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हो जाते हैं अलग अलग, तो वहाँ उन इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत होती है, और वो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से की जाती है. फिर लास्ट है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स
जहाँ पर स्पेशलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्पेशलाइजेशन में बिलीव करती हैं। इट मीन्स उनकी हर एक्टिविटी और फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज टीम होती है। जैसे कि हमारे स्कूल में ही है, हमारा स्कूल पूरा स्पेशलाइजेशन को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश के टीचर हैं जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट। मैथ्स पढ़ाने के लिए मैथ्स के टीचर्स हैं जिनके पास मैथ्स से रिलेटेड यहाँ क्वालिफ़िकेशन है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी स्पेशलाइज्ड टीम होंगी तो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड टीम जो होंगी एक दूसरे से कंसल्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने में थोड़ा सा कतराएंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी जो अथॉरिटी है वो चैलेंज हो रही है। तो इस केस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों सबको समझ में आया होगा ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक हमारा। तो इसमें 3-4 बातें बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो हमारे सारी एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल एम्प्लॉई को बाइंड करता है। किस लिए? फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड की तरह होता है गार्डलैंड में, जो सभी एक्टिविटीज़ को जोड़ देता है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है, जानबूझ के किया जाता है, अपने आप नहीं होता है वो इस्टेब्लिश, क्योंकि कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये हमारे मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में रिक्वायर्ड है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है, ना कि अलग से कोई एक फंक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन टॉपिक। तो हैव अ गुड डे, गुड बाय।